प्रधान हमारी वाइस प्रेसिडेंट जॉइंट फोरम की शशि मेहता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक गोप्य से भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत माता की वंदे। My name is Arvind Mehta. I am president of the Joint Forum of Residents, New Rajendra Nagar, which is a registered body and an umbrella organization of New Rajendra Nagar. What inspired you to organize this event when the MP, MLA and councillor all have gathered together? You know, the main reason was that we never had two arms at the same point. We were having different MLA, different councillor from different parties. This time we are fortunate that we got three arms from the same party. Okay. Member Parliament from BJP, MLA from BJP and councillor of BJP. And But the fourth arm, earlier councillor and MLA were from Aam Party, same party. So they didn't work. they didn't work because the condition right at the moment, if you see in New Rajendra Nagar, Yeah. it is basically, I can't say it worst, but it is almost worst in the sense, so far as the sewers are concerned, the stormwater drains are concerned, the roads are concerned, the parks are concerned, dark corners are concerned, street light is concerned, so many things were there which were lacking, and they have not been able to do it for the last 11 years. We have been telling them, we have been teaching them, we have been supporting them to do all this, but which they have not done. They have not done willfully. Okay. And how do you think BJP is going to tackle all this? No, and they'll BJP work? today's meeting was just to make an assessment of our works which have to be done. We have given them a charter of 25 points which are very, very necessary, and we give them time also. Right. It cannot be done overnight. We give them 1 year time. In 1 year, they have to do all these works to facilitate the people. Look, भारत की राजधानी नई दिल्ली और दिल है नई दिल्ली का, और नई दिल्ली का दिल न्यू राजेंद्र नगर है। न्यू राजेंद्र नगर जो है वो नई दिल्ली का दिल है। तो इसलिए हम अगर इसको ही रोल मॉडल सिटी नहीं बना सकते या रोल मॉडल कॉलोनी बना सकते तो फिर हम कहाँ काम करेंगे। अगर एज अ रेजिडेंट आप देखें तो न्यू राजेंद्र नगर में देर आर मल्टीपल RWAs, Pamposh Lane as separate, R Block separate, ये joint forum separate. Why don't you work together? What is the issue? No, we work together. Right. In fact, these smaller projects, these smaller works like cleaning of the sewer, like cleaning of the stormwater drain, cleaning of the road, sanitation, that is undertaken by these small RWAs only. Okay. We are here for the larger projects. We want water for 24 hours. Okay. Not even 24 hours, at least 2 times water supplies must be there, Bigger sewer projects should be there. Okay. All road to be metallized, They should be recarpeted nicely, beautifully, So we are into that projects, and we consult all these RWs there. We take all these RWs along with us. Okay. We don't work without them. They keep on coming with us. They are having conclave with us. They are having debate with us. They are having each and every kind of all sort of discussions with us. Thank you so much for talking to us. आप मेंबर हैं जो रेजिडेंट एसोसिएशन का जॉइंट फोरम है, और आज आपने यहाँ पर MP हैं, MLA हैं, काउंसलर, उनकी टीम को बुलाया है। हाँ जी। क्या वजह रही जो पहले इतने सालों से आम आदमी पार्टी में दुर्गेश पाठक थे कि आपको लगा कि क्या काम था जो आपको लगा मिसिंग है या नहीं हो पा रहा है? आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, ना कुछ पानी के बारे में सोचा कि पानी 2 बार, ये इंदरपुरी साथ में है, हमारे वहाँ पे 3 बार पानी आता है जी। और पॉश कॉलोनी न्यू राजेंद्र नगर, यहाँ पे 1 बार भी पानी आता है और किसी किसी दिन बिल्कुल गायब हो जाता है। बेस्ट रीज़न उन्हीं को मालूम थे पार्टी के। और सड़कें देखो बुरी हालत है, सीवर्स देखो बुरी हालत है, कहने में इलीगल कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, सभी कहने में ये आम आदमी इस पार्टी इसको कुछ देख भी नहीं पाई। तो आपने कभी उनको मिले या कंप्लेंट्स दी? बहुत बार अप्रोच किया है और उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं,
आते थे टाइम पास करने के लिए, और न्यू राजेंद्र नगर के लिए स्पेशली उन्होंने कहा जी मुझे यहाँ से कोई वोट ही नहीं मिले, मैं न्यू राजेंद्र नगर के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। ओके, ही सेड दिस। यस। ओके, पहले एक टीम थी जिसमें आरती चावला थी और दुर्गेश पाठक एक साथ थे, अब आरती चावला ने ज्वाइन कर ली बीजेपी। आपको लगता है कि अब काम होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और आपने जो कंप्लेंट्स दी हैं, जो चार्टर दिया है, क्या है उसमें, क्या इश्यूज की एरियाज क्या है? की एरियाज पानी का है, सीवर्स का है, रोड्स का है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, ये सारे ये चार्टर डिमांड्स हमने हैंड ओवर की हैं। ओके, और एक आम आदमी पार्टी और बीजेपी का राग 2100 रुपया और 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। अगर हम न्यू राजेंद्र नगर की बात करें, एक पॉश एरिया जिसमें औरतों का या महिलाओं का मुद्दा 2100 और 2500 नहीं है, उनके और इश्यूज हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या महिलाओं के क्या इश्यूज हैं इस एरिया में? मैं तो कहता हूँ कि ये ऑफर बिल्कुल बंद होनी चाहिए थी। कुछ लोग अगर ये ऑफर हुई है तो काम ही नहीं करेंगे, हम उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे कि हमें 2500 मिले या 2100 मिले। पर बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट जो ये फ्री की रेवड़ियाँ दे रहे हैं वो हम टैक्स पेयर के जेब से ही जाएगा, तो ये होना नहीं चाहिए। जी, जो न्यू राजेंद्र नगर में आप काफी सालों से हैं, यहीं पे रहते हैं, आप रेजिडेंट हैं, आप क्या देखते हैं महिलाओं के क्या इश्यूज हैं? सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ये क्या इश्यूज? बिल्कुल महिलाओं के सिक्योरिटी के इशू चेन स्नैचिंग में होती है, पर्स स्नैचिंग में होती है। जब ये वीर बाजार रखता है, इसमें मोस्टली होता है। हमने कई बार पुलिस के साथ भी ये मुद्दे उठाए हैं कि वीर बाजार को कहीं और शिफ्ट किया जाए। उस टाइम आप देखिए ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होती है और चेन स्नैचिंग सिक्योरिटी रीजन तो है ही है। तो आपको उसका कोई सोल्यूशन मिलता है या अपने आप सब देखना पड़ता है? देखो अब बड़ी होप है, बीजेपी आ गई है, कुछ लगता है कि काम होगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। Shashi Mehta. And you are member of this resident joint forum, right? Right. What key areas as a woman do you feel, as a woman, as a resident, that ails New Rajendra Nagar? So many areas हैं, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाता। अब जिस तरीके से उमंग आए हैं, देन हमारी बांसुरी जी आई हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद बढ़ रही है कि हाँ यहाँ पर कुछ काम होंगे। नहीं तो 10-11 सालों से बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। जो लास्ट यहाँ की सड़कें बनी हैं वो शीला जी के फंड से बनी थी। उसके बाद तो सड़कों का बुरा हाल है, पार्कों की बुरी हालत है, गंदगी का कोई वो नहीं है, सीवर ओवरफ्लो करते हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ। Apart from roads and sewage, water, what other areas do you feel that they remain unchecked or uncovered? अभी तो जो मेन एरियाज दिखाई दे रहे हैं वो अगर इसी के ऊपर फोकस नहीं हो रहा, जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं, फुटपाथ हैं जो हैं, अगर इसी पे फोकस नहीं हो रहा, जैसे पार्कों में जुआ होता रहता है, गैम्बलिंग है, स्नैचिंग है, पुलिस उस तरीके से हमारे साथ वो नहीं कर पाती, कोई उनकी पेट्रोलिंग नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत है। लेकिन बस यही है कि मेन फोकस अभी चल रहा है कि सड़कें बने, ट्रिमिंग हो जाए, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ हो, कुछ भी नहीं है। जैसे एक क्लब के लिए बड़ी उम्मीद थी कि एक सीनियर सिटीजन्स का क्लब हो, लेडीज़ के लिए एक छोटा सा क्लब हो जाए जहाँ पर वो बैठ सकें, गप्पे मार सकें, पेपर पढ़ सकें, ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो आपने अभी बात की सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेडीज़ के लिए कोई क्लब हो, आपने अथॉरिटीज से या आपकी एसोसिएशन ने बात की? बिल्कुल बात। क्या रिस्पांस था? उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन मेन दिक्कत यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है ना, कि ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी के, ये आप 3 पार्टीज हैं, तो कुछ लोग अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं कि जगह ही नहीं है, कहाँ से ये क्लब बनेगा। अरे करने की अगर आप में चाह हो तो जगह की कोई कमी नहीं होती, दिल थोड़ा सा बड़ा करो, सब लोग एक साथ आओ, लेकिन यूनिटी नहीं है। ओके। जो न्यू राजेंद्र नगर में हमारी डेवलपमेंट का फेलियर है वो बिल्कुल यूनिटी नहीं है। सब अपने को सुपर बॉस, हर घर से एक नेता निकलता है और वो कहता है नहीं ये कर रही है तो ये गलत कर रही है, मैं करूँगा तो ज़्यादा। अभी आपको बीजेपी से होप है कि काम होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शीला जी के बाद अब उम्मीद जागी है कि कुछ काम। थैंक यू सो मच। Amrit Chaudhary. I am a resident of R Block, New Rajendra Nagar. One of the earlier residents, born and brought up here. Okay. And what are the issues? How do you think New Rajendra Nagar has changed? This colony was initially started immediately after the independence. So it has some legacy issues. A whole lot of things have gone
old and need immediate replacement. And replacement in the sense a very large movement needs to be done for sewer work, for roads, for maintenance of parks, and then there are multiple forums here which are working at times at cross purposes, but they all need to come together. That is what we want. And now that we have the government at the center and the state at the same government, our hopes are very high. Okay. Earlier, did you approach the concerned authorities regarding these issues? For the last 5 years, we've been progressively and very aggressively approaching them, but we've got very limited response. Okay. And they never came or they never worked? They used to listen to us, but nothing on the ground used to happen. Nothing much on the ground used to happen. Okay. Only selective work used to happen. Okay. And what do you think was the reason? What was the reason? Maybe I think the reason that I as a resident can fathom is that the concentration was more towards the resettlement Clusters? areas. Okay. Slum Clusters. clusters, the resettlement areas, and the voices of colonies like now R Block, Niranjan Nagar, Double Story are very old colonies and jewels in the crown now. They're now part of Central Delhi, and I don't see any other green colony like this anywhere in the country. But yes, the concentration has been on the resettlement side. Thank you so much for talking. परिवार, समस्त देवतुल्य जनता, आप सभी का मैं पहले अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके बहुमूल्य आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से, आपकी मेहनत से आज मेरे को ये मौका मिला है कि मैं समस्त राजेंद्र नगर की सेवा कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद से राजेंद्र नगर विधानसभा को हम 70 में नंबर 1 बनाएंगे। कल मेरा शपथ का कार्यक्रम है, इसके बाद हमारा ऑफिस फंक्शनल हो जाएगा। ऑफिस हमारा मिडवे रहेगा इंदरपुरी, जहाँ पे एमएलए का ऑफिस रहता था। बाकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको कुछ काम हो आप रुक के ना आए, मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपके बीच में आऊंगा। और हमारा एक आगे का प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि एवरी वीक हम डिफरेंट ब्लॉक्स में राजेंद्र नगर, इंदरपुरी, नारायणा, मैं खुद आके अधिकारियों के साथ समस्या भी देखेंगे, उनका क्या समाधान होगा और आपकी तरफ से जो इनपुट्स आएंगे फिर हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। और राजेंद्र नगर विधानसभा को मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आज से 5 साल बाद जब आप देखेंगे तो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, डेवलपमेंट वाइज आपको नंबर 1 मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और जॉइंट फोरम ऑफ रेजिडेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।